ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شہروں میں رہنے والے لوگ گاؤں کی زندگی اور گاؤں کے رہنے والے لوگوں کی ذہنیت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ زمین کا لالچ ایسے ایسے گل کھلاتا ہے کہ انسان کی عقل ہی نہیں بلکہ انسانیت بھی شرمندہ ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ گو کہ میں شہر سے پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی، لیکن گاؤں والوں کی بیٹی بھی تھی۔ اسی لیے مجھے بھی زمین کے اس رواج کی بھینٹ چڑھنا پڑا جو اب تک بے شمار معصوموں کی زندگی تباہ اور بے شمار لوگوں کی جانیں لے چکا ہے۔ میرا نام ہادیہ ہے اور میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ گھر صرف ہمارے گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے میں بھی ایک بڑا مقام رکھتا تھا۔ میرے ابا گاؤں کے بہت بڑے وڈیرے تھے اور ان کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین تھی۔ وہ صرف گاؤں کی سیاست میں ہی دخیل نہیں تھے بلکہ ملکی سیاست میں بھی قدم رکھ چکے تھے۔ جب میں پیدا ہوئی، میرے پیدا ہونے کو خوش بختی کی علامت گردانا گیا، کیونکہ اس سے پہلے میرے 3 بھائی بھی موجود تھے۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کے ناطے میرے لاڈ پیار میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ شروع سے ہی میں نے ہر شخص کو اپنے سامنے جھکتے اور احترام کرتے ہوئے دیکھا، جس سے میرے اندر بچپن سے ہی غرور اور تکبر کی افزائش شروع ہو گئی۔ ہوش سنبھالنے کی عمر تک مجھ میں غرور اور حکم چلانے کی عادت بہت پختہ ہو چکی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنا یہ غرور اور یہ تکبر صرف ان عام کمزور اور بے بس لوگوں کو دکھا سکتی ہوں جن پر میرا اختیار ہے۔ میں بھول گئی تھی کہ ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں خود بھی ایک محکوم اور بے بس مخلوق ہوں، اور مجھے وہی کرنا پڑے گا جو مجھے پیدا کرنے والے چاہیں گے۔ ابا نے مجھے شروع سے ہی گاؤں کے کسی اسکول میں نہیں پڑھایا بلکہ شہر بھیجا، اور شہر کے بڑے بڑے اسکولوں میں میری تعلیم مکمل ہوئی۔ ایک گاڑی اور ڈرائیور میرے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ میں اسکول جانے کے علاوہ بھی جہاں چاہتی اسے لے جاتی۔ اس کے باوجود میرے دل میں اس عزت و ناموس کا احترام تھا جو میرے ابا نے اپنی پوری زندگی لگا کر کمائی تھی۔ اسی لیے میں بے رہ روی سے بچی رہی اور کسی بھی ایسے کام میں حصہ نہیں لیا کہ جس سے میرے خاندان کا شملہ نیچے ہوتا۔ گریجویشن کے بعد جب میں نے آگے پڑھنا چاہا تو ابا نے مجھے روک دیا اور کہنے لگے کہ بس پتر، اتنی پڑھائی کافی ہے، تو اب گھر میں رہ اور اب ہم کچھ عرصے تیری شادی کر دیں گے۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا کے سامنے انکار کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ابا نے آج تک میری کوئی بات نہیں ٹالی تھی اور میری ہر فرمائش مسکرا کر پوری کی تھی، لیکن اس کے باوجود میں جانتی تھی کہ ابا کو انکار کرنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ آج تک جس کسی نے بھی ابا کے سامنے انکار کرنے کی جرت کی تھی، اس کا انجام نہایت عبرتناک ہوا تھا۔ ابا صرف اپنی بیٹی کے حق میں ہی کچھ نرم دل تھے، ورنہ عام وڈیروں کی نسبت وہ کہیں زیادہ ظالم اور جابر انسان تھے۔ غنڈوں کی ایک فوج حویلی کی حفاظت کیا کرتی تھی، اور جو شخص بھی ابا کے سامنے زبان کھولنے کی جرت کرتا یا ان کی رائے بدلنے کی کوشش کرتا، ابا اپنے چند الفاظ سے اس کا مقام بدل دیا کرتے تھے۔ میں نے کتنے ہی ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ابا کے پالتو کتوں کے ہاتھوں ادھڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب ابا کا غصہ انتہا پر ہوتا تو اپنے آپ کو انسان نہیں خدا سمجھنے لگتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے اس فیصلے پر چپ رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شادی میں ابھی بھی کچھ وقت باقی ہے۔ اسی دوران میری حویلی کے معاملات میں دلچسپی بڑھتی چلی گئی اور میں آہستہ آہستہ حویلی کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے لگی۔ میری ماں تو مجھے جنم دیتے ہی اللہ کے پاس چلی گئی تھی۔ ابا کے صرف ایک ہی بھائی تھے اور ان کی اولاد میں صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام فراز تھا۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ ان کا بیٹا ذہنی طور پر معذور تھا۔ فراز دیکھنے میں تو نارمل نظر آتا تھا، لیکن کبھی کبھار جب اس پر دورہ پڑتا تو وہ وحشی ہو جایا کرتا تھا۔ اسی لیے اکثر و بیشتر اس کے سر پر 3-4 ملازم موجود رہتے تھے جو دورے کی صورت میں زبردستی اسے قابو کر کے زنجیروں میں جکڑ کر اسے اس کے کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے۔ انہیں دنوں حویلی میں ایک نیا ملازم بھی آیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے آیا اور کہاں سے آیا، بس یوں ہی لگا کہ جیسے وہ آسمان سے ہی ٹپکا ہو۔ مجھے صرف یہی کہہ کر اس کا تعارف کروایا گیا کہ بی بی جی، یہ نیا ملازم ہے جس کا نام ساجد ہے۔
वो दिखने में अच्छे खासे ऊंचे लंबे कद का और मजबूत काठी का नौजवान था, लेकिन जो अजीब बात थी वो ये कि उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था, जिससे उसकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। मैंने उसे हुक्म दिया कि ये मास्क उतारे तो कहने लगा, बीबी जी, मेरा चेहरा हादसे में जल चुका है और बेहद भयानक हो चुका है, मैं इसलिए मास्क लगा कर रखता हूं। उसकी बात सुनकर मुझे बेख्तियार बड़ी कराहियत सी महसूस हुई और मैंने उसे मास्क उतारने से रोक दिया। आहिस्ता आहिस्ता चंद ही महीनों में उस नौजवान ने अपनी काबिलियत मुस्तादी की वजह से मेरी नज़र में अपनी जगह बना ली और मैं उसकी जहानत और ताकत का फ़ायदा उठाते हुए उसे हर वक्त अपने साथ रखने लगी। साजिद की आंखें बड़ी ही जानदार थीं और उसकी आंखों में चमक और जिंदगी की बेताब लहरें देखकर यह अंदाज़ा कतई नहीं होता था कि उस नौजवान का चेहरा जलकर भयानक हो चुका है। मुझे इल्म ही नहीं हुआ कि कब साजिद आहिस्ता आहिस्ता मुलाजिम के रुतबे से तरक्की करते करते मेरे दिल का हाकिम बन चुका था। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे साजिद इतना पसंद भी आ सकता है कि मैं उसे अपना महबूब बना लूंगी। वो साजिद के जिसका चेहरा देखने के एहसास से ही मुझे शदीद कराहियत महसूस होती थी, वो मेरे दिल का हाकिम बन जाएगा। इसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मैंने साजिद को अपनी हवेली की एक नौजवान मुलाजमा से एक कोने में खड़े चुपके चुपके बात करते देखा। ये मंजर मेरे लिए नया नहीं था। हवेली में ऐसे चोरी छुपे छोटे मोटे मुआशके चला ही करते थे और मैंने कभी उनमें दखल देने की ज़रूरत नहीं समझी थी, क्योंकि हवेली के मालिक होने के नाते मेरी ये शान नहीं थी कि मैं उन कमी कमीन लोगों के मुआशकों की टोह लेती फिरूं। लेकिन साजिद को उस नौजवान मुलाजमा से बात करते देखकर न जाने मेरे दिल में क्यों हसद, रकाबत और गुस्से का एक शदीद तूफान उठा। साजिद बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखते हुए उससे बात कर रहा था और कनखियों से इधर उधर भी देखता जा रहा था। उसने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे होते हुए देख लिया था, लेकिन उसने इस बात का कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया और उससे बात करने में मसरूफ़ रहा। मैंने बड़े ही शदीद गुस्से के आलम में साजिद को आवाज़ दी और उसे अपने पास बुलाया। वो दौड़ा आया और मेरे सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि जी बीबी जी, हुक्म कीजिए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया और जलते हुए दिल के हाथ उससे पूछा कि तुम्हारा इस मुलाजमा के साथ क्या रिश्ता है जो तुम उससे यूं हंस कर बातें कर रहे थे। साजिद के चेहरे पर एक लम्हे को हैरानगी के असरात उभरे, लेकिन उसने अपनी नज़र नहीं उठाई। उसी तरह झुकी हुई नज़र से बोला, कुछ नहीं बीबी जी, यूं ही इधर उधर की बातें कर रहा था। मैंने अपने दिल में कमीना सा मंसूबा तैयार करते हुए उससे पूछा कि नहीं, तुम मुझे बताओ, अगर तुम उस मुलाजमा को पसंद करते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। साजिद कहने लगा, नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं। ये बात कहते हुए मैं उसकी आंखों में हल्के से तरद्दुद और फिक्र की लहरें देख सकती थी। मैंने भी बात को बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा और उसे एक काम बताकर शहर भेज दिया। उसकी हवेली से बाहर निकलते ही मैंने उस मुलाजमा को अपने पास बुला लिया। वो एक जवान साल और मजबूत जिस्म की लड़की थी जो हमारी हवेली की ही एक पुरानी मुलाजमा की बेटी थी। जवानी का जोबन उस लड़की पर टूट कर बरसा था और कमी कमीन होने के बावजूद वो ऐसा मलकूती हुस्न रखती थी कि किसी को भी अपनी जानिब मुतवज्जो कर सकती थी। अब तो मेरे साथ उसकी दिली दुश्मनी और रकाबत शुरू हो चुकी थी, इसलिए मुझे वो एक आंख नहीं भा रही थी। मैंने उसे कुछ काम करने का हुक्म दिया और हवेली के अंदरूनी कमरों में भेज दिया। जो काम मैंने उसे करने का हुक्म दिया था वो शीशे के कुछ नाजुक ज़रूफ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना था। मेरे कान अंदर की जानिब भी लगे हुए थे। अचानक ही छनाके की एक आवाज़ आई और साथ ही किसी बर्तन के टूटने की भी। मैं तीर की तरह अंदर गई क्योंकि मेरा मंसूबा पूरा हो चुका था। मैंने उसे ये काम इसीलिए दिया था कि जवानी के जोश में वो लड़की इस काम को करते हुए कोई न कोई गलती तो ज़रूर करेगी, जिससे मुझे उस पर जुल्म करने का बहाना मिल जाएगा। और मेरा मकसद पूरा हो चुका था। मुझे गुस्से के आलम में अंदर आते देखकर उस जवान साला मुलाजमा, जिसका नाम नूरा था, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। वो हाथ बांधे मुझसे माफ़ी मांगने ही लगी थी कि मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। वो सुन होकर मुझे देखने लगी, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी मुलाजिम पर हाथ नहीं उठाया था। मैंने उसे कहा कि इतने कीमती बर्तनों को तुमने एहतियात से मुंतकिल करना था
और मैंने तुम्हें कहा भी था, फिर भी तुमने यह नुकसान कर दिया। अब मुझे इस जैसे बर्तन दोबारा कहाँ मिलेंगे। ये कहकर मैंने कुछ दूसरी मुलाजमाओं को आवाज़ दी और उनके आने पर उन्हें नूरा को पकड़कर बाहर लाने का हुक्म दिया। वो उसे बाजुओं से पकड़कर घसीटती हुई बाहर ले गई। नूरा ऊंची आवाज़ में रोते हुए मुझसे रहम की अपील कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। उसी गुस्से के आलम में मैं अपने बाबा के औताक की तरफ गई और वहां बाहर ही दीवार पर लटका हुआ चमड़े का चाबुक उतार लिया। जब मुझे मुलाजमाओं ने चाबुक हाथ में लिए वापस आते हुए देखा तो उनके चेहरे भी खौफ से जर्द पड़ गए। मैंने मुलाजमाओं को हुक्म दिया कि नूरा को सतून के साथ बांधो और खुद साइड पर खड़ी हो जाओ। नूरा तो चाबुक देखकर इस कदर खौफजदा हुई थी कि अब वो मिन्नत करना भी भूल गई थी और फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने बंधी हुई नूरा पर चाबुक बरसाना शुरू किए और उसके जवान जिस्म को जगह जगह से उस खतरनाक चमड़े के चाबुक से उधेड़ना शुरू कर दिया। मेरी हर ज़रब उसकी जिस्म से कुछ गोश्त उतार रही थी। मैंने जानबूझकर एक दो चाबुक इस जाविये से बरसाए कि चाबुक का आखिरी हिस्सा उसके चेहरे से लिपटता हुआ वापस आए। मेरी उन ज़रबों से उसके चेहरे का भी नक्शा बिगड़ गया और उसके चेहरे पर जख्मों की दरारें पड़ गईं। और यही मैं चाहती थी। जब मेरे दिल को कुछ सुकून मिला तो मैंने हाथ रोक लिया। देखा तो नूरा चाबुक खाते खाते बेहोश हो चुकी थी और उसके पूरे जिस्म से खून टपक रहा था। मैंने मुलाजमाओं को हुक्म दिया कि उसे खोल कर ले जाओ और मरहम पट्टी करो। मेरे दिल को सुकून मिल चुका था और अब मैं अकेली बैठी ये सोच रही थी कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। गुस्सा उतरने के बाद जहन तेजी से काम करने लगा था और इधर उधर की कड़ियां आपस में जोड़ रहा था। आखिर मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं साजिद की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूं। यह इंकशाफ मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की और अपने मुकाम को याद किया और ख़ुद से कहा कि साजिद एक मुलाजिम इस काबिल कैसे हो सकता है कि उसकी मोहब्बत में मैं किसी दूसरी लड़की का ये हाल कर दूं। लेकिन दिल इस बात को मानने से इनकारी था और ये मेरे लिए एक नई दरियाफ्त थी। साजिद जब शहर से काम निपटाकर शाम को हवेली वापस पहुंचा तो उसे यकीनन मालूम हो चुका था कि उसके पीछे उस मुलाजमा का क्या हशर हुआ है। मैं अब जानना चाहती थी कि क्या साजिद पर इस बात का अच्छा असर पड़ता है या बुरा। इसलिए जब वो वापस आया तो मैंने जानबूझकर उसे 1-2 घंटे नहीं बुलाया ताकि वो अच्छी तरह से हवेली में घूम फिर ले और उसे खबर हो जाए कि उसके बाद उस मुलाजमा का क्या हाल हुआ है। तकरीबन 2 घंटे बाद जब मैंने साजिद को अपने पास पेश होने का हुक्म दिया तो वो आ गया। मेरी नज़रें उसकी आंखों पर जमी हुई थी। उनमें अफसुर्दगी का हल्का सा तासुर तो था, लेकिन उनमें रंज की या शिकवे की झलक नहीं थी। एक तब्दीली जो मैंने नोट की थी कि अब वो वक्त नज़र झुकाकर मुझसे बात नहीं कर रहा था, बल्कि मेरी किसी बात का जवाब देते हुए ही नज़र झुका रहा था। और जब मैं बात कर रही थी तो कुछ लम्हों के लिए मेरे चेहरे की तरफ देखकर बड़े मुतमईन अंदाज में आंखें झुका लेता था। ये देखकर मुझे हैरानी भी हुई और तजस्सुस भी कि क्या साजिद ये सब खुद भी चाहता था कि मैं उसकी मोहब्बत में पड़ूं और उस मुलाजमा का ये हाल करूं। उन्हीं दिनों मेरी शादी की बातें हवेली में तेज हो गई थीं और अब्बा का जो मंसूबा मेरे सामने आया उसने मेरे होश उड़ा दिए। चूंकि अब्बा के पास मौजूद ज़मीनें सब की सब दादा अब्बा की छोड़ी हुई विरासत ही थी, तो उन हज़ारों एकड़ ज़मीन में चच्चा का बराबर का हिस्सा था और कोई बहन ना होने की वजह से ये मामला अब्बा जी के लिए और भी आसान था। अब्बा ने इस ख्याल से कि यह ज़मीन बाहर के ख़ानदान में न जाए और सारी की सारी हुकूमत मेरे हाथ में ही रहे, चच्चा के पागल बेटे को अपना दामाद बनाने को तैयार हो गए थे। ये खबर मेरे आसाब पर बिजली बनकर गिरी। मैंने एहतजाज का सोचा और अब्बा के पास भी गई, लेकिन अब्बा के रोबदार चेहरे और करोफर को देखकर मेरी सारी ताकत शल हो गई और मैं बेबसी से वापस लौट आई। चच्चा अपने पागल बेटे को मुझसे ब्याहने के ख्याल से ही बहुत खुश थे। उन्हें नहीं मालूम था कि यह सब चाल दरअसल अब्बा की है और मुझे नहीं मालूम था कि इन सब के पीछे कोई और जहन भी काम कर रहा है। मेरी तो दुनिया ही ज़ेरो ज़बर हो गई थी। उसी गम में मैं जाने किस तरह साजिद के करीब होती चली गई और एक ही महीने में वो वक्त आ गया कि साजिद मेरा हमराज और हमदम बन गया। अब उसकी आंखें हर वक्त चमकती रहती थीं और मैं उसे अपने दिल का हाल सुनाया करती थी।
साजिद ने मुझे भागने की भी पेशकश की और बड़े गौर से मेरी तरफ देखता रहा, लेकिन मैंने उसकी पेशकश का ये जवाब दिया कि अब्बा की जितनी पहुंच है वो हमें पूरी दुनिया में भी सुकून से नहीं रहने देंगे, इसीलिए मुल्क से भागने का ख्याल भी फजूल है। साजिद चुप रहा और मेरी हिम्मत बढ़ाता रहा, लेकिन उसके बाद उसने कोई और मंसूबा मेरे सामने पेश नहीं किया। इस सारे हंगामे और गम के दौरान मैं एक बहुत बड़ी बात फरामोश कर चुकी थी, जिसका खमियाजा मुझे आगे चलकर भुगतना था। 4 माह बाद घर वालों ने मेरी शादी की तैयारियां करना शुरू कर दी। चूंकि शादी घर के अंदर ही होनी थी, इसीलिए कुछ ज्यादा तैयारियां भी नहीं हुई और मैं दुल्हन बनकर अपने ही कमरे में वापस आ गई। अब मेरा कमरा ही मेरा हुजला उरूसी बन गया था और इस बात पर चच्चा को कोई एतराज नहीं था। शादी की रात में बहुत देर तक अपने चच्चा के नीम दीवाने बेटे का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया, तो मैंने मुलाजमा के जरिए साजिद को ही बुला लिया। साजिद सारी रात मुझसे बातें करता रहा और फिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैं शादी के गम और महबूब के कुर्ब में अपनी हदों को फरामोश कर बैठी। जज्बात अकल पर गालिब आ गए और मैं और साजिद एक हो गए। जब हमें इस बात का एहसास हुआ तो हम दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, लेकिन न जाने क्यों साजिद की हरकत और बातों के अंदाज से लगता था कि वो इस सब की तवक्को पहले से कर रहा था। सुबह होने को हुई तो मैंने साजिद को वापस भेज दिया और सो गई। उसके बाद तो ये मामूल सा बन गया। चच्चा का नीम दीवाना बेटा मेरे पास कभी नहीं आया और ना ही मैंने उसकी दोबारा सूरत देखी। एक बार उसकी सूरत मुझे शादी पर ही नजर आई थी और उसके बाद मुझे वो दोबारा नजर नहीं आया। इस बात को मामूली समझना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हमारे गुनाह का ये रिश्ता चलता रहा और मैं अपने शौहर की जगह हर रोज साजिद को अपने पास बुलाती रही और अपनी रातों की तन्हाई दूर करती रही। गुनाह का ये रिश्ता चलते हुए काफ़ी महीने बीत गए और ये सब करते हुए 6 महीने गुजर गए। इन 6 माह में हवेली में किसी को नहीं पता था कि चच्चा का बेटा फराज मेरे पास एक रात भी नहीं आया। ये रिश्ता यूं ही चलता रहता अगर मेरी जिंदगी में वो कयामत ना आती। एक दिन मैं सोकर उठी तो मेरी तबीयत बड़ी ही बोझल थी और सर चकरा रहा था। मैंने सोचा कि शायद ये गुजरी हुई रात का खुमार है जो जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन जब नाश्ते के बाद मेरी तबीयत यूं ही रही और कुछ ही देर में मुझे बड़ी जोरदार उबकाई आई। मैंने उसको भी वक्ती ही समझा और एक गोली खाकर लेट गई। ये सारा मंजर हमारी हवेली की एक पुरानी और काबिल एतमाद मुलाजमा अम्मा जीला देख रही थी। कुछ देर बाद वो इजाज़त लेकर मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि बीबी जी एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा न लगे। मैंने कहा कि बोलो। तो कहने लगी, बीबी जी आपकी तबीयत ख़राब है, आप डॉक्टर से चेकअप क्यों नहीं करवा रही? मैंने कहा, अम्मा जीला मैं ठीक हूँ, कभी कभार ऐसे हो जाता है। तो वो कहने लगी कि बीबी जी आपको मैंने गोद में पाला है, इसीलिए आपसे बात करने की हिम्मत करके आई हूँ। अगर आप मेरी बात मान लें तो एक बार डॉक्टर को चेक करवा ही लें। मैं अम्मा की बात दोबारा सुनकर चिढ़ गई और तेज़ आवाज़ में कहने लगी कि आखिर क्या बात है, क्यों चेक करवाऊं? अम्मा सर झुकाकर बोली कि बीबी जी क्या पता खुदा की रहमत हो गई हो। ये सुनते ही मेरे दिलो दिमाग को एक झटका लगा। अम्मा जी सच कह रही थी, ये नामुमकिन नहीं था। भले ही मेरा शौहर उन 6 माह में मेरे पास नहीं आया था और उसकी खबर किसी को नहीं थी, लेकिन मेरी रातें साजिद के साथ गुजर रही थीं। ये सिर्फ मैं ही जानती थी। मैंने अम्मा को कहा कि अच्छा मैं सोचती हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने साजिद को बुलाया और उससे कहा कि गाड़ी तैयार करे और मुझे शहर ले चले। वो दिन के औकात में मेरे हुक्म की तामील बिल्कुल एक मुलाजिम की तरह ही करता था और रात को मेरा शौहर बन जाया करता था। साजिद सर झुकाकर बाहर निकल गया और मैं तैयार होकर बाहर पहुंच गई। शहर पहुंचकर मैंने साजिद से डॉक्टर के पास जाने का कहा तो उसने सर घुमाकर कहा कि बीबी जी खैरियत है, क्या हुआ? मैंने उसे गुस्से से घूरा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में मेरे बताए हुए डॉक्टर के पास मैं पहुंच गई। वहां जाकर चेकअप करवाया तो अम्मा जीला का खदशा दुरुस्त साबित हुआ। घर वालों की नज़र में खुदा की रहमत और मेरी नज़र में मेरे गुनाह का बीज मेरे पेट में जड़ पकड़ चुका था। मैं माँ बनने वाली थी।
मेरा दिल एकदम से बोझल हो गया और मैं सोचने लगी कि अगर ये बात बाहर निकल गई तो लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी और मेरा बाप और चचा मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, क्योंकि ये मेरे शौहर की औलाद नहीं बल्कि मेरे महबूब की थी, जिसके साथ मैंने गुनाह का रिश्ता रखा हुआ था। मैं मरे कदमों से बाहर निकल आई और गाड़ी में बैठ गई। साजिद ने पूछा कि क्या हुआ तो मैं उस पर चढ़ दौड़ी। मैंने उसे खूब बातें सुनाई और कहा कि तुम्हें मेरी चाहत थी और अब इस गुनाह के रिश्ते का फल सामने आने वाला है। मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे होगा। मेरी बात सुनकर साजिद अजीब अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा कि बीबी जी आप फिक्र ना करें और नॉर्मल रहें। किसी को क्या मालूम कि यह किसकी औलाद है। उसकी बात सुनकर मुझे और गुस्सा आया और कहने लगी कि तुम मर्द नहीं हो। असली मर्द होते तो अब तक कुछ ना कुछ कर चुके होते या मेरे शौहर को ही कत्ल कर देते। मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं उस पागल आदमी के साथ कैसे बाकी ज़िंदगी गुजारूंगी, क्योंकि तुम तो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहने वाले नहीं हो। मेरी बात सुनकर भी साजिद के माथे पर कोई त्योरी नहीं आई और वह मुझे समझाता रहा कि मैं नॉर्मल रहूं। उसकी बात दुरुस्त थी। अब यही एक तरीका था। मैं वापस घर पहुंच गई और अम्मा जीला को बुलाया। माँ ना होने की वजह से ये सारी बातें मैं अम्मा जीला के साथ ही कर सकती थी। अम्मा जीला आई और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, अम्मा तुम ठीक कह रही थी, मैं माँ बनने वाली हूँ। और ये कहकर मैंने सर झुका लिया। अम्मा ये सुनकर बहुत खुश हुई और मेरी बलाएं लेने लगी और मेरा सर सहलाकर वो बोली कि बीबी जी आप फिक्र ना करें, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। मुझे अम्मा पर बहुत प्यार आया, जो कि वो हमारी मुलाजमा थी लेकिन मेरे लिए बुजुर्ग ही थी। मैंने अम्मा का हाथ पकड़कर कहा कि अम्मा अब ये बात अब्बा और चचा तक पहुंचाना आपका जिम्मा है। तो वो कहने लगीं कि बेटी ये बात तो शौहर ही बताए तो अच्छा लगता है। मैंने कहा वो तो बता ही देंगे, आप भी जाकर बताएं और इनाम ले लें। अब्बा ये खुशी की खबर सुनकर आपको कोई इनाम ज़रूर देंगे। शाम तक ये खबर पूरी हवेली में फैल चुकी थी। शाम को अब्बा और चचा मेरे पास आए और मुझे बहुत सारा प्यार किया और कहने लगे ये हमारा वारिस है जो तुम पैदा कर रही हो। तुम्हारा शौहर कहाँ है? मैं एक लम्हे को हड़बड़ा गई। अभी कुछ कहने ही वाली थी कि चचा बोले कि वो यहीं कहीं होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। चचा की बात सुनकर मैं एकदम चौंक पड़ी, लेकिन अपने औसान बहाल रखे और अपने चेहरे पर कोई तासुर नहीं आने दिया। ये सब हंगामा ख़त्म होने के बाद रात हो गई। रात में साजिद फिर रोज़ की तरह मेरे पास आया। उसके कमरे में आते ही मुझे फिर गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अब मुझे तुम्हारे साथ का कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरी बात सुनकर साजिद खामोश खड़ा रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी बड़ी बड़ी चमकीली आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। उसकी नज़रों में कोई ख़ास बात थी जो मैं उसकी नज़रों से हड़बड़ा रही थी। कुछ देर तक वो मुझे घूरता रहा और उसके बाद बग़ैर कुछ कहे उल्टे कदमों बाहर चला गया। मेरे लिए ये वक्त बहुत ही मुश्किल था कि मुझे ज़मीर की खलिश ही मारे डाल रही थी। इस दौरान मुझे ख्याल आया कि मेरा शौहर फराज यानी मेरे चचा का पागल बेटा कहाँ है। मुझे उसका पता तो करना ही चाहिए। मैंने उसकी खोज लगाना शुरू की तो मुझे मालूम हुआ कि हवेली में किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ है। यके बाद दीगरी मैंने सबसे पूछ लिया। इस दौरान साजिद मेरे आस पास मंडलाता रहा और मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी तंज की एक आमेजिश भी दिखाई दी। वो मेरी कोशिशों को देख रहा था और शायद अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रहा होगा। मुझे तो यही लगा कि शायद वो मुझे एक बदचलन लड़की ही समझ रहा है और देख रहा है कि मेरे पेट में उसका बीज है और मैं अपने शौहर को ढूंढती फिर रही हूँ। खैर मेरी तलाश नाकाम रही और मुझे फराज नजर नहीं आया। मैं थक हार कर कुछ देर बाद अपने कमरे में आ गई। ज़मीर की खलिश और एहसास की चुभन इतनी शदीद थी कि अब मैंने बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती और अजीबो गरीब सोचों में घिरी रहती। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे और मैं बजाय इसके कि अपने बच्चे का ख्याल करती और अपना ख्याल करती, खाना पीना छोड़ने की वजह से रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जा रही थी। अम्मा जीला ने बहुत कोशिश की कि वो मेरा ख्याल रखें और मुझे किसी न किसी तरह से खिला दिया करें, लेकिन अब मेरा दिल ही नहीं लगता था।
نہ ہی کچھ کھانے کو دل چاہتا تھا۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ آخر میرا کیا بنے گا۔ میرا دل عجیب و غریب قسم کے وسوسوں کا شکار تھا، اور میں سوچتی تھی کہ میرا شوہر جو نیم دیوانہ ہے، اگر میرے پاس آ گیا اور اس نے یہ بات کر دی کہ میں تو تمہارے پاس آیا ہی نہیں، تو یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اسے میں کیا جواب دوں گی؟ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر ہر وقت حالت دیماندگی کی حالت میں نہیں ہوتا، اور زیادہ تر درست ہی رہتا ہے اور اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے۔ اسی لیے مجھے اس بات کی بہت فکر تھی کہ اس کے واپس آنے پر میرا کیا بنے گا۔ ان سب سوچوں اور فکر کی وجہ سے میرا حال خراب سے خراب ہوتا جا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور ساجد نے دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ میرا حال دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں میں اب تھوڑا تھوڑا افسوس نظر آنے لگا تھا۔ چوتھا مہینہ تھا جب ایک رات ساجد نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ دروازے پہ ساجد ہے۔ میں نے بے دلی سے کہا کہ جو بھی ہے آ جاؤ۔ وہ اندر آیا تو اس کی شکل دیکھ کر مجھے غصہ تو آیا، لیکن میرا کچھ بھی بولنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں یوں ہی کرسی پر بیٹھی رہی۔ وہ کچھ دیر دروازے میں کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ ہادیہ ایک بات تو بتاؤ۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہنے لگا تم اپنے چچا کے بیٹے کو کتنا جانتی ہو؟ میں اس کی بات سے چونک گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے دوبارہ کہا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ اس حویلی میں رہتے ہوئے آخر تم نے اسے کتنی بار دیکھا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ میں اپنے چچا کے بیٹے کو زیادہ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اسے زیادہ بار دیکھا تھا۔ نوجوانی میں ہی اس پر پاگل پن کے دورے پڑنا شروع ہوئے تھے اور بس مجھے خبر ملتی رہتی تھی۔ ہمارے درمیان میں کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا جو میں اس کے بارے میں زیادہ سوچتی، اور نہ میں ہی اس کی خیر خبر لینے کے لیے جاتی تھی۔ حویلی کا ماحول اسی طرح کا تھا کہ مردانہ حصے میں میرا آنا جانا کم ہی ہوتا تھا، اور اگر میں جاتی بھی تھی تو زیادہ تر اپنے بابا سے ہی ملتی تھی، اور اس کے لیے بھی مجھے زیادہ بار مردانہ حصے میں نہیں جانا پڑتا تھا۔ اکثر میرے بلانے پر بابا میرے پاس خود ہی آ جاتے تھے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے ساجد کو کہا کہ نہیں، میں فراز کو زیادہ نہیں جانتی اور نہ ہی اسے زیادہ بار دیکھا ہے۔ اس کے پاگل پن کے دورے پڑنے سے پہلے تو اس کے ساتھ میری بات چیت ہو جاتی تھی، لیکن وہ بھی زیادہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مجھے کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ میں اپنے آپ سے باہر نکل کر ادھر ادھر بھی دیکھوں۔ میری بات سن کر ساجد کچھ لمحے خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے احساسات تھے۔ میں نے بھی اتنا عرصہ اس کے ساتھ گزارنے کے باوجود اب تک اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، کیونکہ وہ ماسک کبھی اتارتا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر یوں ہی سوچتے رہنے کے بعد ساجد دھیرے سے میری طرف بڑھا اور میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا کہ اٹھو۔ میں نہ سمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی ہوئی اٹھی اور کھڑی ہو گئی۔ میرا ایک ہاتھ تھامے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مجھے لے کر بیڈ کی طرف گیا اور بیڈ پر بٹھا دیا، اور خود گھٹنوں کے بل ہو کر میرے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس پوزیشن میں اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل سامنے تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم روز بروز کھلتی جا رہی ہو اور ہمارے بچے کا خیال نہیں رکھ رہی۔ میں اس کی بات پر بھڑک کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے تھوڑے سے غصے کا اظہار کرتے ہوئے مجھے انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خاموش رہی اور اپنا غصہ دبا لیا۔ ساجد کہنے لگا کہ ہادیہ، میں بچپن سے ہی تمہارے عشق میں گرفتار تھا، لیکن تم مجھ پر توجہ ہی نہیں دیتی تھی اور نہ ہی کبھی میرا حال جاننے کی کوشش کی۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آج ساجد کچھ زیادہ ہی بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا، اور پھر دھیرے سے اس نے اپنے ماسک کو اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اسے روکنا چاہا۔ اس نے اشارے سے مجھے روکتے ہوئے اپنا ماسک اتار دیا، اور اس کا چہرہ دیکھتے ہی میں پتھر کی ہو گئی۔ ساجد، میرا محبوب، جس کے ساتھ میرا گناہ کا رشتہ تھا، آج میرے سامنے بغیر نقاب کے تھا۔ ساجد کوئی اور نہیں بلکہ فراز ہی تھا، اور اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے اور آنسو کبھی بھی لمحے باہر نکلنے کو تیار تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ سب کیسے ہوا، اور فراز کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ فراز کے آنسو آخرکار اس کے رخسار پر لڑک ہی گئے،
और वो कहने लगा कि हादिया, जब तुमने मुझे तवज्जो नहीं दी तो मैंने पागलपन का ढोंग किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही मुझे देखने आई, बल्कि मुझसे और भी दूर हो गई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने किसी और तरीके से तुम्हारी तवज्जो हासिल करने का सोचा और यूं तुम्हारा मुलाजिम बनकर हर वक्त तुम्हारे साथ रहने लगा। मैंने तुम्हारा एतबार तो जीत लिया और तुम्हें हासिल भी कर लिया, लेकिन मैं तब तक यही समझ रहा था कि तुम भी एक आवारा लड़की हो। यह भी हकीकत है कि मैंने तुम्हें धोखे में रखा। मैं अब अपनी जिंदगी के इश्क, अपनी मोहब्बत को इस हाल में नहीं देख सकता, क्योंकि यह सब कुछ जो भी हो रहा है मेरी वजह से ही हो रहा है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अपनी हादिया हंसती खेलती और खुशो खुरम चाहिए। मैं बीमार और पागल नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हारे इश्क का बीमार हूं और तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना हूं। हो सके तो अपने इस दीवाने को माफ़ कर देना। अगर तुम चाहोगी तो मैं दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। बस तुम्हें अब खुश रहना है और अपने आप को हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद रखना है। मैं नहीं चाहता कि तुम पर और हमारे बच्चे पर किसी भी किस्म का कोई नुकसानदेह असर हो। मैं अपनी मोहब्बत की खातिर तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जाने को भी तैयार हूँ। ये कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर मेरे पैर पकड़ना चाहे। अपने पैरों पर उसके हाथ का लम्स महसूस करते ही मैं भड़क कर उठी और दूर हो गई। झुककर उसके हाथ थामे और उसे अपने बराबर खड़ा कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी ने ये मेरे साथ कैसा खेल खेला है। फराज ने मेरे कंधे थामे और कहने लगा, हादिया, गुनाह की सोच से बाहर निकल आओ, क्योंकि मैंने तुम्हें शादी से पहले कभी हाथ ही नहीं लगाया। शादी के बाद बेशक तुमने उसे गुनाह समझा हो, लेकिन मैं अपनी जगह पर मुतमईन था कि मैं अपनी बीवी को ही छू रहा हूं। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है कि इस पछतावे के एहसास से बाहर निकल आओ और अपने फराज को माफ़ कर दो। फराज की बातें मेरे दिल में जहां तस्कीन की फुवार डाल रही थी, वहीं पर मेरा जहन जलजले की जद में था। मैं उससे जो कुछ भी पूछना चाहती थी, उन सब का जवाब तो फराज अपनी वजाहत में ही मुझे दे चुका था। जिंदगी ने मुझे जो रंग दिखाए थे, उन्होंने मुझे हैरान और शशतर करके रख दिया था। कहाँ मैं इस एहसास से मरने वाली थी कि गुनाह का ये बीज मेरी जिंदगी ले लेगा, और कहाँ अल्लाह ने मुझे इस तरह से बचाया कि मुझे उसकी उम्मीद भी नहीं थी। मैं पत्थर बनी फराज को देखती जा रही थी। फराज जाने क्या समझा कि उसने सर झुकाया और शर्मिंदगी के आलम में मुड़कर वापस जाने लगा, तो मैंने उसका हाथ थामकर उसका रुख अपनी तरफ किया और अपने शौहर के सीने से लग गई। पहली बार मुझे तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत, दीवानगी और इश्क का वो एहसास मिला जिसे मैंने ज़िंदगी में कभी महसूस ही नहीं किया था। मुझे अब किसी की कोई वजाहत देने की ज़रूरत ही नहीं रही थी, क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे मेरा सब कुछ वापस लौटा दिया था और मुझे बग़ैर किसी वजाहत के, बग़ैर कटोरे में खड़े किए, अपने शौहर की नज़र में सुर्खरू कर दिया था। ये थी मेरी ज़िंदगी की कहानी जो आज मैंने आपके सामने रख दी है। अब आप फैसला करें कि मुझे कहाँ पर क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी और लोगों को मेरी कहानी से क्या सबक हासिल करना चाहिए। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।